new operator, basically it is used to create the object, and while we are creating the object with the help of constructor, so instance variable will get the space in the memory. Next we are going to talk about square operator. So this is square bracket or square operators, or we can say it's a symbol of array, declaring the array. So we can use these operators for declaring, creating arrays. So operators precedence, for example, unary operators. Unary means the operator which we are using with one variable, right? That is called the unary, right? Square bracket, I mean with one variable we use, right? Plus plus, minus minus, these variables we use with the one variable, right? So next we talk about, like, arithmetic operators, plus, minus, multiply, division, modular. So modular you need to very special take care, है ना? This is going to return a remainder, okay? And shift operator अभी हमने नहीं पढ़ा है, just we will see it, okay? Then comparison operators, so less than equal, greater than equal, and instance of, these are the comparison operator. Equality operators, I mean double equal, not equal. Bitwise operators, and or XOR, and so we are not focusing towards, we will focus towards, we are going to use these only, okay? Short circuit operators, double and double OR, okay? Conditional operators, and assignment operators. Now this is one more topic is the evolution orders of operands, है ना? Operands का evolution orders क्या रहेगा, right? So I mean execution flow क्या होगा जहाँ multiple operators के combination से we are going to solve some problem. So I hope you you already familiar board mass, plus minus multiply, bracket, तो उसमें सबसे पहले क्या solve होगा, right? तो जो board mass का solve करने का जो way होता है mathematics में, here is also there is a no precedence for operands before applying any operators. All operands will be evaluated from left to right, okay? I mean from this direction to this direction, left to right evolution होगा whenever it is going to solve. So for example, first what will happen here? Multiply, right? Then second multiply. Then what happen here? Division. These things will happen. So finally we reach on the flow control. So this is a core concept of any language, okay? This is flow control. So how we can control a flow, right? The execution of the program, how we can control. So that is called the flow control. So how the things came, what topics come in the flow control. Flow control describes the order in which the statement will be executed at runtime. Okay, किस order में आपका statement execute होगा, तो who is going to decide? This is flow control is going to decide, okay? So inside this flow control, there are so many topic names, like three mainly: selection statement, iterative statement, transfer statements. Okay, inside this selection statement, if else, I mean if else ladder came, then the switch statement came. If else and switch is called the selection statement. Okay, जहाँ पे आपको choice हो, है ना? And so that kind of problems we are going to solve by using this selection statement. Then iterative statement. So if you want to execute the things, continuously, or I mean, iterating, so you want to do.
So while loop we can use, do while we can use, for loop we can use, for each we can loop, for each loop we can use. इसका एक और एडवांस फॉर ईच आया है दैट केम इन जावा 8, तो उसकी भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे. ओके, ट्रांसफर स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, ट्राई, कैच, फाइनल, these are the transfer statement. Okay, so one by one we are going to talk about this one. लेकिन नोट्स में जस्ट है ना, डेफिनेशन इज गिवन, सिंटेक्स इज गिवन, एग्जांपल इज गिवन, बट आपको मल्टीपल एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे. ओके, तो इसके लिए आई ऑलवेज यूज टू डू, एक सी की बुक है डेप्थ इन सी. ओके, देयर इज अ बुक डेप्थ इन सी. लेट मी सी, आई डोंट नो वेयर आई कीप दैट बुक. So that book I will share on the group. Okay, that book I will share on the group. तो उस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी. ओके, सो कोशिश ये करनी है कि एवरी डे ट्राई टू मेक वन प्रोग्राम, वन लॉजिकल प्रोग्राम एवरी डे यू नीड टू मेक. ओके, सो ऑन द ग्रुप आई विल शेयर, आई विल फाइंड दैट बुक एंड आई विल शेयर विथ यू. ओके, सो सी की बुक है डेप्थ इन सी, लॉट ऑफ प्रोग्राम्स यू विल गेट देयर. सो उन प्रोग्राम्स की मदद से है ना हम लोग ट्राई करेंगे कि हाउ वी कैन डेवलप दी लॉजिक्स. ओके, एंड हाउ वी कैन सॉल्व दी प्रॉब्लम्स. बेसिकली क्वेश्चंस हम लोग वहां से पिक करेंगे, देन वी विल पुट आवर ब्रेन टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स. ओके, सो फर्स्ट थिंग है सिलेक्शन स्टेटमेंट. सो सिलेक्शन स्टेटमेंट इफ एल्स वी विल सी. तो इसका सिंटेक्स है इफ, और ये आपका पैरेंथेसिस जो ब्रैकेट है यहाँ पे, तो ये इसका क्या हो गया, आर्गुमेंट हो गया. ये इफ का आर्गुमेंट है. इफ के आर्गुमेंट के अंदर जो वैल्यू पास करेंगे ना, दैट वो वैल्यू आपका या किस टाइप का होना चाहिए, तो दैट शुड बी अ बूलियन टाइप. ओके, सो बूलियन में आपका क्या आने वाला है यहाँ पे, आइदर इट विल कम दी ट्रू और क्या आएगा यहाँ पे फॉल्स. ओके, ट्रू या फॉल्स बेस्ड ऑन दी ट्रू फॉल्स. कंडीशन ट्रू है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी. अगर एल्स पार्ट लेकर ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. नहीं होगा अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये इफ से बाहर हो जाएगा, आई मीन ये इसके अंदर नहीं जाने वाला. ओके, दिस विल गो आउट ऑफ फ्रॉम हियर. तो ये इसका एल्स पार्ट हो गया. सो ओके, दिस इज अ एल्स पार्ट. ओके, तो ये आपका क्या हो गया, एल्स पार्ट हो गया, है ना. दिस इज अगर कंडीशन ट्रू हुआ इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स का पार्ट. सो हियर वी कैन अंडरस्टैंड द आर्गुमेंट टू द इफ स्टेटमेंट शुड बी बूलियन टाइप. तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, ये जो बी है ये आपका बूलियन टाइप का होगा यहाँ पर. तो बूलियन टाइप मीन्स या कोई इसमें कैलकुलेशन कुछ भी मतलब है ना, बेस्ड ऑन कंडीशन जो रिजल्ट आ रहा होगा दैट वुड बी द बूलियन टाइप, आइदर ट्रू और फॉल्स. तो इसमें ओनली चॉइस होगी. ओके, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट सिलेक्शन स्टेटमेंट. स्विच के अंदर भी क्या है, चॉइस है, राइट. सो इन दी सिलेक्शन स्टेटमेंट द रिजल्ट वुड बी द बूलियन टाइप. सो जनरल एग्जांपल में देखें कि हम लोग अपनी लाइफ में भी कई ऐसी सिचुएशन आती हैं, फिर भी सी क्या मतलब मुझे यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है, राइट. आई वांट टू डू दिस और दिस, है ना. तो इस तरह का आपको डिसीजन जब लेना होता है, राइट, जहां आपके पास कुछ ट्रू फॉल्स वाली बात होती है. ओके, कि आइदर मैं ये करूंगा या मैं ये करूंगा. ठीक है. सो नॉर्मल जो लाइफ में हम लोग डिसीजन लेते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे हमें ना इफ एल्स वाली, थ्रू द इफ एल्स बेसिकली वी सॉल्व दैट. ओके, अगर ये ट्रू होता है वी विल डू दिस, फॉल्स देन वी आर गोइंग टू डू दिस. ओके, सो दैट टाइप्स ऑफ थिंग्स आर सॉल्व बाय द if else statement. So the argument to the if statement should be boolean type. मतलब आर्गुमेंट की इसकी बात कर रहा हूँ, जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो वैल्यू है ना, इसका जो टाइप है वो बूलियन होना चाहिए, या यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू फॉल्स में आएगा. ठीक है. इफ वी आर प्रोवाइडिंग एनी अदर टाइप, अगर इसकी जगह पे आपने बूलियन के अलावा कुछ और टाइप प्रोवाइड कर दिया तो देन व्हाट विल हैपन, वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर. ओके, सो लुक एट दिस, ध्यान से समझना आप लोग इसको. सो int x is equal to 0. Now we are passing here if x
it will print here hello, or else it is going to print here hi. So it is not printing anything, it is giving us compile time error. What compile time error? Incompatible type found int required boolean. यहाँ पे नीड थी वो boolean की थी और इसको मिला क्या है int टाइप का, राइट? That's why it's giving the compile time error. So remember this. तो यहाँ पे आप वैल्यू किसका दोगे? boolean टाइप दोगे, not int type. Okay. So next we can see here int x is equal to 10, and what we are doing here, x is equal to 20. So x is equal to 20 means what is this equal? What is the use of this equal sign, guys? आप बता सकते हो what is the meaning of equal? सर साइन साइन कर देता है ये। So अभी इसमें क्या साइन था? 10। अब क्या साइन हो गया? 20. 20। तो 20 असाइन हुआ, फाइनल रिजल्ट क्या निकला यहाँ पे? 20. तो अब बताइए 20 क्या 20 बूलियन टाइप है? नहीं, तब भी क्या नहीं। देगा ये? इनकम्पेटेबल टाइप। ओके, तो बूलियन टाइप यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी की जगह पे अगर डबल इक्वल ऑपरेटर होता है जो उन्होंने आगे के एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो अब देखिए क्या होगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा। x इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे पूरे एग्जाम्पल ये लिख रहे हैं x इज इक्वल टू x डबल इक्वल 20। अब डबल इक्वल क्या करता है, जो भी उनके अंदर वैल्यू होगा ना उनको आपस में उनकी इक्वलिटी चेक करेगा, ठीक है। तो x के अंदर अभी क्या है 10, 10 डबल इक्वल 20। अब बताइए 10 20 के इक्वल होता है क्या? नो, फॉल्स हो गया। तो कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। फाइनल रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया वो फॉल्स आया है, लेकिन फॉल्स का टाइप क्या है? बूलियन। मतलब ये इट विल वर्क। ओके, जब फॉल्स हुआ तो इफ के अंदर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? एल्स के अंदर जाएगा। और उसने क्या प्रिंट कर दिया? हाई। गॉट इट गाइस? इसके लिए कोई लैंग्वेज मैटर नहीं करती, किसी भी लैंग्वेज में आप देखोगे सेम आपका ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है, चाहे आप पाइथन हो, सी हो, सी प्लस प्लस हो, यू नो जावा स्क्रिप्ट हो, एनी लैंग्वेज, है ना, ये सबके लिए कॉमन है। और हर एक लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये सिलेक्शन स्टेटमेंट, लूप, है ना। सो ऑल दिस, सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ दिस इज वर्किंग। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिक्स्थ एग्जांपल वी आर गोइंग टू सी हियर, boolean b is equal to false. Okay, boolean b is equal to false. Now what we are doing here, b is equal to true. So b के अंदर क्या ना, पहले क्या है यहाँ पे false है, ठीक है, false असाइन है b के अंदर, now क्या असाइन कर दिया? true. फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है? true. So true आएगा तो क्या रिजल्ट प्रिंट करेगा? ये hello, राइट। कंडीशन ट्रू हुआ, इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स होता एल्स की बॉडी प्रिंट होती, तो आउटपुट क्या आया? हेलो। हेलो क्यों आया? पहले इसमें फॉल्स था, नाउ इसमें ट्रू इनिशियलाइज कर दिया, और देन फाइनल बी की वैल्यू क्या निकली यहाँ पे? ट्रू। देन इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, हेलो इट इज गोइंग टू प्रिंट। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी हियर boolean b is equal to false. Okay, now what we are doing, b डबल इक्वल ट्रू। तो आप देखिए b की जगह पे क्या आ जाएगा? फॉल्स। फॉल्स डबल इक्वल ट्रू, फॉल्स ट्रू के इक्वल होता है क्या? आई मीन फॉल्स इक्वल ट्रू, रिजल्ट क्या आने वाला है? फॉल्स। तो ये इफ के अंदर नहीं जाएगा, ये किस में जाएगा? एल्स में जाएगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू, है ना, इन एल्स पार्ट, और यहाँ क्या प्रिंट कर देगा? हाई। हम लोगों ने 5 एग्जांपल आई थिंक इसका डिस्कस कर लिया है। बेहतर है कि हम इनका प्रैक्टिकल करके देखें, ठीक है। सो आई एम क्रिएटिंग, लेट मी सी इफ आई डू हैव दिस। सो आई एम ऑन अ okay, November core Java. Let me create one. What is the problem with this? Why it is giving compile time error? Let me save it. Okay, so let me create one package here. It is a new concept, so नया पैकेज क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम लोग com.rsg.flow control. Okay, inside this flow control we are talking about, first हम लोग if else समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। we are trying to understand if else. Okay,
Okay. So one by one we will understand each and everything, like if statement का जो पहला था हम लोग just we are going to verify it, है ना, कि इसके अंदर जो वैल्यू है बूलियन टाइप की आएगी या एनी टाइप वी कैन टेक. ओके, so just one of test class I'm creating here. Okay, and I'm going to check this. Okay, इसमें अगर मेन मेथड लिखना है तो इक्लिप्स पे मेन लिख के कंट्रोल स्पेस प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू राइट. ओके, एंड प्रेस एंटर. सो मेन लिख गया इसके अंदर. नाउ आई एम पुटिंग हियर int x is equal to 0. Okay, int x is equal to 0. int x is equal to 0. Okay, now I am putting here if x. Okay, if x just they are printing here hello. else ये क्या प्रिंट करेगा? hi. Okay, xetl is going to print the hi. तो इसने क्या दे दिया? compile time error. What compile time error it's giving? You can read this. It is saying type mismatch cannot convert from int to boolean. ये int से boolean में convert नहीं कर पा रहे क्योंकि x क्या है? int टाइप का है और यहाँ पे जो वैल्यू जो रिजल्ट आएगा फाइनल वो क्या होना चाहिए? आपका boolean टाइप का होना चाहिए. ठीक है, तो कंपाइल टाइम एरर. फर्स्ट हमने सिनेरियो वेरीफाई कर लिया. सेकंड देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे. फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 10 कर दी हमने. नाउ वी आर पुटिंग हियर x की वैल्यू हमने, सॉरी गाइस, x की वैल्यू हम यहाँ पे x के अंदर अब हम 20 असाइन कर देते हैं. तो यहाँ पे होगा क्या कि पहले इसमें 10 था, अब इसमें 20 जाएगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट तो इंट टाइप का ही निकला. होना क्या चाहिए? बूलियन. तो तब भी इसने क्या किया है? सेम. एरर क्या आया है? टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू बूलियन. रिजल्ट आया वो इंट आया है, बूलियन में कन्वर्ट हो नहीं पा रहा है. तो इस वजह से इट्स गिविंग दी कंपाइल टाइम एरर. थर्ड सिनेरियो हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं. इंट एक्स इज इक्वल टू 10, है ना, और अभी इसमें क्या कर देंगे? डबल इक्वल 20. सो जैसे ही डबल इक्वल ऑपरेटर यूज किया तो अभी ये क्या करेगा? दोनों का इक्वलिटी चेक करेगा कि x का जो वैल्यू है क्या वो 20 के इक्वल है. तो इसमें क्या हो रहा है? आपका रिजल्ट आ रहा है वो बूलियन आ रहा है. आइदर इट वुड बी द ट्रू और क्या होगा? फॉल्स. सो यहाँ पे क्या हुआ आपका कि रिजल्ट क्या आने वाला है? ट्रू या फॉल्स गाइस? बताइए जरा. x डबल इक्वल 20, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? False. फॉल्स. फॉल्स में क्या होगा? हेलो प्रिंट या हाई? Hi. We can run it and we can see, we can verify it. So it's printing the let it run first. This is printing here hi. Okay, so third scenario we have discussed. Then we are going to see here fourth one. हाँ कुछ I think ये जो notes है ना ये 1.7 तक है. तो पहले एरर का मैसेज थोड़ा डिफरेंट हो सकता है कि इनकम्पिटेबल टाइप फाउंड एंड रिक्वायर्ड बूलियन, कुछ इस तरह का एरर आती थी पहले, राइट. अभी आप देखोगे तो थोड़ा चेंज हो गया. हाँ काजल, सर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए. हाई कैसे आया एक बार इस इक्वल टू का? आई हाई जो हमारा लास्ट में आउटपुट. अच्छा, जो हाई कैसे आया है, राइट, आप ये बोल रहे हो. ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? जस्ट मैं ये जो अंदर का जो पार्ट है, ब्रिंगिंग दिस ऑन पेंट एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, तो यहाँ से हम लोग इसको समझ सकते हैं, है ना, इन अ बेटर वे वी कैन अंडरस्टैंड इट. ओके, सी हियर. ओके, तो यहाँ पे देखो आप, अभी x की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x नाउ करेंटली? है ना, 10 है इसके अंदर. व्हाट दिस x इज हैविंग 10, राइट. तो यहाँ पे चेक करेगा कि x की वैल्यू क्या है. काजुल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? काजुल, मेरी वॉइस आ रही है आपको? सर 20. x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है? 10 है. x की वैल्यू 10 है. y की वैल्यू, सॉरी y तो है नहीं, मतलब अब यहाँ पे क्या आ गया? 10. हेयर इज 10. तो मैं आपको ये बोलूँ 10 डबल इक्वल का मतलब आप मैथ का इक्वल समझो यहाँ पे, ठीक है. सो
10 इक्वल 20, ये दोनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं है, बताइए जरा। सर इक्वल नहीं है। नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी? फॉल्स। यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या रिजल्ट, फाइनल जो रिजल्ट आया वो क्या है, यहाँ पे फॉल्स आया। ठीक है, फॉल्स आया। तो देखिए चॉइस कुछ ऐसे है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ की बॉडी, ये जो बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे इसका एंड हो रहा है, तो ये इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इफ की बॉडी में क्या लिखा है, हेलो। अगर ये फॉल्स हुआ, है ना, फॉल्स हुआ, तो कहाँ पे जाएगा ये, वेयर इट इज गोइंग, एल्स पार्ट, एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, सो अगर ये ट्रू होता, अगर ये कंडीशन यहाँ पे आपकी ट्रू होती, है ना, ट्रू मीन्स थी, अगर ट्रू होता तो ये इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होती, फॉल्स होगा तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। सो एल्स में क्या लिख रखा है यहाँ पे, हाई, तो इसलिए इसने हाई प्रिंट कर दिया। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आपका बुलियन में आएगा, आइदर इट कुड बी द ट्रू और इट कुड बी द फॉल्स। सो ट्रू होगा तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स हुआ तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, दैट्स इट। काजल, you understand it? Yes sir, thank you sir. No problem. So now we can move, कुछ और सिनेरियो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ना। Boolean b इक्वल टू फॉल्स, ओके, Boolean b इक्वल टू फॉल्स, ओके। तो सेम मैं यहाँ पे अलग क्लास नहीं बना रहा हूँ, जस्ट आई एम क्रिएटिंग दी सेम क्लास हियर। लेट मी शेयर दिस प्रोग्राम विथ यू, ओके, लेट मी शेयर दिस प्रोग्राम विथ यू, so you can do the practice of it. Our batch in November, okay. Okay, so I think you're able to get this program. Next we are going to see, अगला जो इसमें टॉपिक है, I mean अगला जो that is Boolean type की वैल्यू लेते हैं। So let's we can take a Boolean type, okay. Let me take a Boolean, है ना, Boolean b equal to, Boolean b equal to, we are putting here false, Boolean b equal to false, okay. Now what we are putting here, b equal true. So anyone can tell कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? पहले तो आपको ये देखना है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, इक्वलिटी चेक कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, व्हाट वी आर डूइंग? असाइनमेंट कर दिया है सर, असाइन पहले फॉल्स था फिर ट्रू कर दिया। पहले क्या असाइन था, फॉल्स था, अभी क्या असाइन हो गया, ट्रू। ट्रू जब असाइन हो गया तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला यहाँ पे, ट्रू, राइट। सो कंडीशन ट्रू हुई तो क्या आ गया यहाँ पे, हेलो। अभी इसके अंदर फॉल्स था, बी के अंदर, इसके अंदर हमने बी के अंदर ट्रू डाल दिया, तो बी का क्या रिजल्ट आया, ट्रू। सो ट्रू है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, क्या प्रिंट करेगा? सर बी की वैल्यू ट्रू कैसे हुआ, मतलब असाइन करने से? असाइन करने से कुछ ऐसे होगा, देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर आपने ठीक से समझा होगा, स्टार्टिंग में हमने जब पढ़ा था कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, इंट ए इक्वल टू, मैंने लिखा 10, इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू 10 है सर, ए की वैल्यू 10 है। ए की वैल्यू 10 आप कब कह पा रहे हो ये चीज, क्योंकि ए क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है, ए क्या है, कंटेनर है, और इसके अंदर 10 आया, 10 स्टोर हुआ है, तो ऐसे ये जो इक्वल है ना, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। तो इसकी वजह से 10 असाइन हो गया किसके अंदर, ए के अंदर, ठीक है, तभी तो आप बोल पा रहे हो ए इक्वल टू 10, है ना, ए इक्वल 10, ए के अंदर 10 है, राइट, ए कंटेनर है, ये बात क्लियर हो गई। ऐसे अगर मैं यहाँ पे एक चीज और लिखूं, बूलियन बी इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, बी के अंदर क्या असाइन हो गया है, ट्रू, ट्रू ट्रू। तो आप बोल रहे हो बी की वैल्यू क्या है अभी, ट्रू, यहाँ पे फॉल्स करना था ना हमारा, फॉल्स कर देते हम लोग। लेट मी पुट हियर, मैंने यहाँ पे लिखा बूलियन बी इक्वल टू फॉल्स, ओके। तो अभी बी के अंदर क्या चला गया, फॉल्स, तो हम कह रहे हैं कि बी की वैल्यू क्या है अभी, फॉल्स है,
ठीक है। अब अगर मैं फिर से लिखूं यहाँ पे बी इफ आई एम राइटिंग सॉरी बी इक्वल ट्रू, इसका मतलब क्या है? अब इसमें क्या असाइन हो गया बी के अंदर? ट्रू सर। ट्रू। तो जब ट्रू है तो रिजल्ट क्या आने वाला है आपका यहाँ पे? आई मीन बॉडी किसकी एग्जीक्यूट होगी? इफ वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी, राइट। और अगर ये फॉल्स होता तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होती। तो अगर ट्रू है तो जो भी है हेलो प्रिंट कर देगा, फॉल्स है तो हाई प्रिंट कर देगा। आप देखो जरा यहाँ पे क्या है, आई मीन ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई है। ये क्या प्रिंट करेगा? हेलो। ओके, लेट मी रन इट एंड वी कैन वेरीफाई इट। सर बी की वैल्यू तो हमने फॉल्स से दिया है ना, फिर नीचे ट्रू कैसे दे दिया फिर? ये लाइन नंबर 8 पे क्या किया हमने? सी लाइन नंबर 8 पे हमने क्या किया है? अभी इसमें ट्रू इनिशियलाइज किया ना इसमें। पहले क्या असाइन किया है? फॉल्स। अभी क्या असाइन कर दिया? ट्रू। फाइनल क्या होगा? आपसे अगर मैं ये बोलूं यहाँ पे, इफ आई विल से इन दिस वे इंट एज इक्वल टू 10, ठीक है। अभी ए के अंदर क्या, ए की वैल्यू क्या है? 10, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं ए इक्वल 20, मैं यहां पे आपको पूछूं कि ए की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, आप ये बोलोगे कि इसके अंदर 10 है, या आप ये बोलोगे इसके अंदर 20 है? तो पहले 10 था, अब 20 इसके अंदर क्या हो गया? ओवरराइड हो गया, राइट। ये हट गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा? अब किसने जगह ले लिया? 20 ने, राइट। तो ऐसे ही इसमें था कि पहले इसके अंदर फॉल्स था, फिर दोबारा इसमें ट्रू डाल दिया, तो फॉल्स को क्या कर दिया इसने? ओवरराइड कर दिया, राइट। ये तो मैथ में भी हो जाता है ना। बी के अंदर पहले क्या था? यहाँ पे फॉल्स था, बीच में फॉल्स था, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ लिखा कि बी इक्वल टू ट्रू, बी इक्वल ट्रू, इसका मतलब क्या है? अब ये फॉल्स हट जाएगा, ठीक है। और इसकी जगह क्या, किसने जगह ले लिया? अभी ट्रू ने। तो फाइनल बी की वैल्यू क्या हुई काजल? सर ट्रू होगी अब तो। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पे ट्रू हो गया है। सी बुलियन बी इक्वल टू फॉल्स, फिर से बी इक्वल टू ट्रू लिखा, तो पहले फॉल्स था, अब इसमें ट्रू आ गया। तो जब सर इसमें कोई कंडीशन तो लगा ही रही है, फिर भी चल कैसे रहा है? कंडीशन ये लगा तो इसमें इफ नहीं दिख रहा, इफ कंडीशन ही तो है ये। देखो जरा ये क्या इसके है, अंदर आप इसको देखो ना, ये जो दिख रहा है ना, इफ बी इक्वल ट्रू, देखिए कंडीशन से मतलब फाइनल जो रिजल्ट जो निकलेगा ना यहाँ पे इवोल्यूशन होने के बाद, है ना, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ना, उसका टाइप आपका बुलियन होना चाहिए, ठीक है। तो पहले इसमें क्या असाइन था? फर्स्ट इसमें क्या असाइन था? फॉल्स। अभी क्या असाइन हो गया? ट्रू। तो मैं आपको ये बोलूं कि फाइनल रिजल्ट क्या आया आपका यहाँ पे? ये जो असाइनमेंट होने के बाद फाइनल रिजल्ट क्या आया है? बी ट्रू, ट्रू ही आया। है ना। तो ये कंडीशन ये लगी हुई है, इफ जो दिख रही है ना आपको, ये कंडीशन लगी हुई है इसके अंदर, ठीक है। इसको हम डिबग मोड में भी चला के देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बहुत प्रैक्टिकल फील करना है ना, लेट मी शो यू। सो डिबग मोड सभी को आना चाहिए, ठीक है। इसको डिबग मोड में हम लोग चला के देखते हैं, ठीक है। सो इसको मैंने डिबग मोड में चलाया है, तो ये ब्रेक पॉइंट होता है, यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा डिबग मोड में जब भी मैं अपने प्रोग्राम को, एप्लीकेशन को चलाऊंगा तो यहाँ पे रुक जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया, तो मैं रन टाइम पे इनकी वैल्यू चेक कर सकता हूँ किसमें क्या है, ठीक है। सो अभी आप देखो बी के अंदर क्या है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे माउस लेके गया हूँ, इसने दिखा दिया बी इक्वल फॉल्स, इसका मतलब बी के अंदर अभी क्या है? फॉल्स है। या मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, और यहाँ एक होता है ऑप्शन इंस्पेक्ट का, तो इस इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा एंड आई विल सी कि बी के अंदर क्या है गाइस। सी बी के अंदर क्या है अभी? फॉल्स। सभी को दिख रहा है गाइस? यू एबल टू सी दिस? बी के अंदर अभी क्या है? फॉल्स, ठीक है। अब जैसे ही ये यहाँ पे आया, यहाँ हमने इसको रोक लिया, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे अभी क्या हो गया है? बी इक्वल ट्रू लिखा है, तो अब बी के अंदर क्या साइन हो गया? ट्रू। फाइनल रिजल्ट क्या है? ट्रू। तो यहाँ पे अब क्या हो गया? ट्रू।
जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी या एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी? गाइस कंडीशन ट्रू है तो इफ की बॉडी, इफ की बॉडी तो क्या प्रिंट करेगा? हेलो। तो हमारे पास यहाँ पे ये शॉर्टकट है, हम इससे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। सॉरी F7 होने चाहिए, F7 नहीं है, लेट मी पुट। तो ये इसने क्या किया होगा, देखिए हेलो प्रिंट हो गया और एल से तो ये बाहर ही हो जाएगा, ठीक है। हेलो सर। हम्म। सर हम इस तरीके से भी इसको प्रिंट कर सकते हैं v हाँ। की वैल्यू को लेकर। यहाँ तो हमने v की वैल्यू चेंज कर दी बुलियन की, बट ऊपर बुलियन की वैल्यू v चेंज, की हाँ, बट चेंज ना करके, अगर चेंज ना करे तो प्रिंट हो सकता है इधर से। हाँ होगा ना, क्यों ना होगा। मैंने हटा दिया। अभी आप बताओ v के अंदर क्या है? मैंने नहीं किया चेंज, अभी v के अंदर क्या है? अभी तो v के अंदर फॉल्स ही है। तो फॉल्स है तो कौन सा, इफ वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी या एल्स वाली? अभी सर एल्स होगा ना। हाँ तो आप जो बोल रहे हो ना कि अगर हम इसकी चेंज ना करें तो हो तो रहा है, देखो हाई प्रिंट करेगा अभी क्या प्रिंट करने वाला, हाई प्रिंट करेगा, राइट। तो इसके अंदर जो बुलियन टाइप का कंफ्यूजन होता था। हाँ अभी क्लियर हो गया ना कंफ्यूजन? हाँ सर ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को। तो आप इसको ना उसमें चला सकते हो डेबग मोड में ना, ब्रेक मोड लगा के आप रन टाइम पे उसकी वैल्यू चेक कर सकते हो कि किसके अंदर क्या है, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, लेट मी शेयर दिस प्रोग्राम विथ यू। तो क्लास का नाम आप लोग चेंज कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जैसे ना इफ एल्स डेमो 1, इफ एल्स डेमो 2, इस तरीके से आप करके इसकी प्रैक्टिस कर लोगे आप, ठीक है। हमारा सर इफ एल्स शुरू हो गया वैसे। हाँ इफ एल्स शुरू हो गया हमारा आज से ना, इफ एल्स वाला पार्ट हमारा शुरू हो गया। द न्यू कॉन्सेप्ट भी स्टार्टेड ना। अभी जो हम लोग क्या फ्लो कंट्रोल पढ़ रहे हैं, फ्लो कंट्रोल में सिलेक्शन स्टेटमेंट में इफ एल्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, इफ एल्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देन ये भी हमने देख चुके हैं हम लोग, है ना, ठीक है। अब इसको देखते हैं और ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कोई इसका यूज केस नहीं देख रहे हैं हम लोग, कोई बिजनेस की बात नहीं की है अभी हमने कि किस सिनेरियो में हम इसको यूज करेंगे। अभी जो हमने डिस्कस किया है वो सिंटेक्स समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इफ एल्स, इफ की जो बॉडी है, सॉरी इफ का जो आर्गुमेंट है उसके अंदर हम क्या पास करेंगे, पैरामीटर है इफ का। हेलो सर। हाँ सर इफ एल्स को एक बार थोड़ा रिपीट कर देंगे आप, जो मतलब इफ एल्स क्या होता है? इफ एल्स मतलब जैसे आप अभी कहाँ रह रहे हो, वेर यू लिविंग? फरीदाबाद सर। फरीदाबाद। आपने देखा कि यार मुझे घूमने जाना है, ठीक है, आपने बोला यार या तो मैं दिल्ली चला जाऊं, राइट, या फिर मैं आगरा जाता हूँ, राइट, ताजमहल देखने या कहीं, राइट। आपके पास क्या है, मतलब आपको दोनों, मतलब दिमाग में क्या है आपके में, आप यहाँ भी जा सकते हो और वहां भी जा सकते हो, राइट, करेक्ट। तो आपने कुछ ऐसा किया कि यार मुझे अगर मेट्रो टाइम पे मिल गई मैं दिल्ली चला जाता हूँ, नहीं मिली आगरा चला जाऊंगा, राइट। तो हमारे सामने ऐसा रहता है, सिचुएशन ऐसी आती है, राइट, कि खाने में आज क्या बना है, राइट, खाना आज क्या खाना है, करेक्ट। तो आपने सोचा कि चलो ये खा लेते हैं, राइट, अगर ये अवेलेबल हुआ घर में, ये सामान है ये बना लेते हैं, नहीं है तो चलिए कुछ और बना लेते हैं, राइट, तो बाहर से मंगा लेते हैं, राइट। तो हर हमारी और आपकी जिंदगी में ना इस तरह के सिनेरियो आते हैं कि जहां हमें डिसीजन लेने होते हैं, करेक्ट, जहां आपके पास चॉइस हो। और चॉइस आपका कैसा है, ट्रू या फॉल्स में, राइट। ऐसी चॉइस है आपकी ट्रू या फॉल्स में, आइदर यू विल डू दिस और यू आर गोइंग टू डू दिस, ओके। तो इस तरह के डिसीजन हम लोग डे टू डे लाइफ में लेते हैं, राइट। आजो इस सेम चीज को जावा में कैसे सॉल्व करेंगे? तो जावा में सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने इफ एल्स, कि यहाँ पे क्या दे दिया कि अगर आपका ट्रू हुआ तो ट्रू वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स हुआ तो फॉल्स वाली, ट्रू वाला हुआ इफ की बॉडी, फॉल्स हुई एल्स की बॉडी। तो इस तरह का ये जो जनरल जो ह्यूमन प्रॉब्लम
जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स है जहाँ चॉइस में से कोई आपको डिसाइड करना है ट्रू या फॉल्स वाला, तो वो सिनेरियो को जावा में इन्होंने इस तरीके से सॉल्व किया, ये कॉन्सेप्ट दिया है इफ एल्स वाला। समवन रेजिंग दी हैंड और जस्ट एनीवन सेइंग समथिंग? ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि हम लोग है ना, कि हम लोग क्या लर्न कर रहे हैं अभी, व्हाट वी आर लर्निंग, राइट? सो लेकिन अभी हमने यूज केस की बात की नहीं है, ठीक है? कर्ली ब्रेस से अभी हम सिंटेक्स ही इसका समझ रहे हैं, ठीक है? सो कर्ली ब्रेसेस, ये इसके कर्ली ब्रेसेस, ये ब्रैकेट यूज होंगे, ये ऑप्शनल है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये लिखा हुआ ऑप्शनल है, मतलब आप नहीं भी लगाते हो तब भी ये काम करेगा, ठीक है? एंड विदाउट कर्ली ब्रेसेस वी कैन टेक ओनली वन स्टेटमेंट, ये ध्यान रखना है। अगर किसी इफ के अंदर या एल्स के अंदर कर्ली ब्रैकेट नहीं है ना, कर्ली ब्रेसेस नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी एक ही लाइन एग्जीक्यूट होगी, है ना? ओनली वन लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, रिमेंबर दिस। सेकंड कर्ली लाइन, ब्रैकेट का यूज कहाँ करते हैं वैसे? जहां एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी हो, है ना, बॉडी के अंदर आपको एक से जैसे ज्यादा। कहाँ हमने जैसे कोई भी हम प्रोग्राम जैसे क्रिएट करते हैं तो कहाँ स्टार्ट करते हैं और कहाँ क्लोज करते हैं, वैसे इसका आप एकदम ऐसे एग्जैक्ट। देखो, आप अपने एक प्रोग्राम जब बनाते हो तो उसमें क्या क्या होता है आपको ऐसे सोचना चाहिए। आपने एक जो प्रोग्राम जो अभी बनाया है, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले मुझे बताओ इसके अंदर क्या है, इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर? एक क्लास है, राइट? तो ये क्लास की बॉडी शुरू यहाँ से हुई है, तो क्लास की बॉडी स्टार्ट किससे होगी? कर्ली ब्रेसेस से, राइट? ये स्टार्ट हुई, यहाँ पे क्या होगी? क्लोज। तो जो भी एक्टिविटी करेंगे वो क्लास के अंदर करेंगे, तो क्लास के अंदर क्या हो सकता है? मेथड हो सकता है, राइट? कोई ब्लॉक हो सकता है, कंस्ट्रक्टर हो सकता है, और इफ एल्स का बॉडी हो सकती है, राइट? गॉट इट? तो बहुत सारी चीजें हम सीखते आ रहे हैं कि एक क्लास के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है? सो अभी देखो मेथड, मेन मेथड, इसकी भी बॉडी कहाँ से शुरू हुई है ना? लाइन नंबर 5 से। एंड कहाँ हो रही है? लाइन नंबर 16 पर। और इसके अंदर इफ है, इफ की बॉडी कहाँ से शुरू हुई है? लाइन नंबर 8 से। क्लोज कहाँ हो रही है? 12 पे। एल्स की बॉडी कहाँ से शुरू हुई? लाइन नंबर 13 सॉरी 12 से, और एंड कहाँ हो रही है? 15 पे, ठीक है? सो कुछ इस तरीके से हम लोग वी कैन सी किस किस की बॉडी हो सकती है ना? क्लास की बॉडी हो सकती है, मेथड की बॉडी। जैसे सर हमने यहाँ पर boolean b is equal to false लिया, boolean b वेरिएबल यूज किया यहाँ पर, तो सर यहाँ तो हमने स्टार्ट नहीं किया कर्ली ब्रैकेट, ऐसा क्यों? बूलियन बी इक्वल, क्योंकि ये क्या है? ये इस लाइन को अगर मैं सिलेक्ट करूं तो ये क्या है? आप इसको पढ़ के बताओ मुझे, क्या है ये? वेरिएबल है, राइट? बी क्या है? वेरिएबल है। इसका टाइप क्या है? बूलियन है, और इसको क्या इनिशियलाइज कर रहे हैं? फॉल्स। तो वेरिएबल की कोई बॉडी नहीं होती है, वेरिएबल की बॉडी नहीं होती है। बॉडी किसकी होती है? मेथड की होगी, क्लास की होगी, कंस्ट्रक्टर की होगी, है ना, ब्लॉक की होगी। अब ब्लॉक अलग अलग हो सकते हैं, इफ का ब्लॉक हो सकता है, एल्स का ब्लॉक हो सकता है, लूप का ब्लॉक हो सकता है, स्टैटिक ब्लॉक हो सकता है, इंस्टेंस ब्लॉक हो सकता है, राइट? तो ब्लॉक अलग अलग हो सकते हैं आपके, राइट? तो ये चीज है, वेरिएबल का बॉडी नहीं होती, राइट? वेरिएबल का बॉडी नहीं होती है। इंट एज इक्वल टू आपने लिखा 10 ना, अब आप बोलो ये इसका ब्रैकेट क्यों नहीं है, हमने इसमें सेमीकोलन क्यों लगा दिया? इसका तो ऐसे ब्रैकेट मतलब नहीं है, तो वेरिएबल का कोई ब्रैकेट नहीं होता। आप समझ गए? वेरिएबल का ब्रैकेट नहीं होता, ठीक है? ब्रैकेट आप कब लगाओगे? जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करानी है किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर। अच्छा, मतलब जहाँ सेमीकोलन यूज हो गया सर वहाँ ब्रैकेट यूज नहीं होगा ना? हाँ, सेमीकोलन का मतलब है कि इंग्लिश में जब आप लिखते हो ना फुल स्टॉप, लाइन एंड खत्म हो गई, नहीं सॉरी, वहां सेंटेंस होता है, बट यहाँ पे आपकी लाइन कंप्लीट हो जाती है ना? इसको भी सेपरेट लाइन मानेगा ना इसको, है ना? इसको क्या बोलेगा कि ये आपका यहाँ पर लाइन इसकी कंप्लीट हो गई, है ना? कंपाइलर विल अंडरस्टैंड लाइन नंबर 8 का यहाँ पे क्या हो गया? एंड हो गया। अब ये जो दूसरा इंस्ट्रक्शन है, दूसरी लाइन है इफ की, ये आपकी 10 से शुरू हो रही है, बट ये एंड नहीं हुई है। एंड क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसकी बॉडी है, वो बॉडी के अंदर यहाँ एक से ज्यादा लाइन हो सकती है, राइट? लेकिन बॉडी के अंदर जो लाइन ऐसे आउट की वो यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब इसके अंदर मैं कोई और लाइन भी लिख सकता हूँ, राइट?
तो मतलब आप मेनली सर अगर किसी भी हम बॉडी को स्टार्ट कर रहे हैं उसमें कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज का हम यूज करेंगे ना सर। दोबारा बोलो, क्या बोला आपने? मतलब सर हम किसी भी बॉडी का अगर यूज करते हैं किसी भी प्रोग्राम में तो उसमें हम कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट और ओपन करेंगे, करेक्ट, वेरिएबल्स में यूज नहीं होगा। करेक्ट, ये करेंगे। और आप क्यों लिख रहे हो इसका भी क्लियर होना चाहिए कि एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन हम मान के चल रहे हैं कि इसमें एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है, इसलिए हम लोग बॉडी यूज कर रहे हैं, राइट। बॉडी में सर क्लास हो सकता है, मेन हो सकता है, इफ एल्स हो सकता है, बॉडी में लूप नहीं नहीं हो सकता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बॉडी में मतलब एक क्लास की बॉडी हो सकती है, राइट, मेथड की बॉडी हो सकती है, राइट, किसी ब्लॉक की बॉडी हो सकती है, किसी लूप की बॉडी हो सकती है, राइट, कुछ इस तरीके से आपको बोलना है, आप समझ गए। मतलब बॉडी किसकी हो सकती है, क्लास की बॉडी हो सकती है, मेथड की बॉडी हो सकती है, राइट, इफ स्टेटमेंट की बॉडी हो सकती है, एल्स की बॉडी हो सकती है, राइट, और कंस्ट्रक्टर की बॉडी हो सकती है, राइट, लूप की बॉडी हो सकती है, करेक्ट। तो कुछ इस तरीके से। क्योंकि सर कर्ली ब्रैकेट मैंने देखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं मिस हो जाए तो प्रोग्राम फिर रन नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल सही, कहीं ये अगर पता हमसे होना। मिस हो गया नहीं नहीं, जो आप क्वेश्चन कर रहे हो वो जेन्युइन है, इसलिए मतलब हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो आप ऐसी बिल्कुल फील ना करें कि जो आप पूछ रहे हो कहीं ऐसा मतलब उसमें ऐसी फीलिंग आ रही हो किसी को। तो जस्ट यू नो कि जो आप पूछ रहे हो वो जेन्युइन है ना, इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी, ये समझ आना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो इट्स गुड। सो एनी अदर क्वेश्चन काजल? अब जैसे सर यहाँ पर हमने इफ ब्रैकेट में b इक्वल टू ट्रू कर्ली ब्रैकेट यूज किया, उसके बाद हमने फिर यहाँ पर प्रिंट कर दिया वैल्यू। अगर हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करके फिर प्रिंट करते हैं तो ये होता वैसे? कर्ली ब्रैकेट को पहले अगर क्लोज कर देते फिर प्रिंट करते हैं यहाँ पर सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एलन हेलो फिर आप यूज कुछ करते हैं। आप कुछ ऐसा कहना चाह रहे हो जैसे मान ली मैंने यहाँ पे ये क्लोज कर दिया, राइट। हम्म। अब आप बोल रहे हो कि इसके बाहर कहीं हम अगर यहाँ पे कुछ प्रिंट कराना चाहते तो करेगा नहीं करेगा, ऐसा कुछ बोल रहे हो? मतलब हेलो 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 वर्क करेगा, मतलब जो हमने हेलो प्रिंट कराया सेम एज इट इज सेम अगर हम प्रिंट कराए, यहाँ से हटा दे अगर सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट यहाँ एलन से को आपने हटा दिया, ठीक है, हटा दिया। 100 अब कर आप क्या दिया। कहना चाहते हो कि हम लाइन नंबर 16 पे लिखें इसको? हाँ करेक्ट सर। नहीं, सिंटेक्स गलत हो जाएगा, क्योंकि इफ के साथ में ही एल्स का अपने आप में कुछ रोल नहीं है। ये जो एल्स पार्ट है ना, ये किसका पार्ट है? इफ का है ना, इनका एसोसिएशन कुछ ऐसे होना चाहिए, है ना। इफ का अगर इफ के तुरंत बाद क्या आना चाहिए? एल्स आना चाहिए, राइट। या तो आप एल्स लिखो ही मत, ना लिखो, इसमें अकेला इफ लिख दिया आपने, इट विल वर्क। देखो इसको कुछ ऐसे समझो कि आप अब एल्स पार्ट है नहीं इसका, ठीक है, एल्स पार्ट है नहीं। अब आप बोल रहे हो कि इसके बाद मुझे यहाँ सिस आउट लिखना है, तो यहाँ पे आपने मान लिया कुछ भी, हाई हेलो एनीथिंग यू राइट हियर, ठीक है। सो अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये इफ का पार्ट है या नहीं है? इज द पार्ट ऑफ इफ और नॉट? तो इफ कहाँ से शुरू हुआ है जी आपको बताता हूँ, 10 से शुरू हुआ, 12 पे खत्म हो गया। ये जो सिस आउट है ना, ये इफ का पार्ट नहीं, ये अलग ही लाइन लिखी गई है इसमें, ठीक है, ये अलग ही लाइन लिखी गई है। अब अगर इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो, वी आर राइटिंग हियर हेलो, हेलो लिखा है इसके अंदर, ठीक है। सो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद आके फिर वो हाई भी प्रिंट करेगा, क्योंकि हाई है वो मेन मेथड के अंदर है, इफ के अंदर नहीं है। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद जब ये बाहर आएगा तो कुछ जो भी मिलेगा वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, गॉट इट। तो वो चीज है। लेकिन अगर इफ के साथ में आपने एल्स लगा दिया ना, यहाँ पे ये जो एल्स लगा दिया, तो इनके बीच में आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें आइदर आपका ट्रू हुआ तो इफ का एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स हुआ तो एल्स का एग्जीक्यूट होगा, उसके बाहर आप कुछ भी लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। लेकिन ये इफ और एल्स का पार्ट नहीं है, ये फिर अलग ही है, ठीक है। और ये कंडीशन आपकी ट्रू हो या फॉल्स हो, किसी भी सिनेरियो में ये तो प्रिंट होगा ही होगा, क्योंकि ये आपका इफ एल्स का पार्ट नहीं है ना, ये तो अलग हो गया। लेकिन आप अगर बीच में कहीं आप इसको एंटर करके, है ना, या इस एल्स को एंटर करके यहाँ कुछ लिखोगे तो आपका क्या हो जाएगा? सिंटेक्स एरर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंटेक्स एरर नहीं करनी है, ठीक है गाइस।
तो that got it or not? समझ आया या कंफ्यूज हो गए काजल? नहीं सर, आ गया वैसे समझ है ना? सर। तो ये ध्यान रखना है, अगर एल्स यूज कर रहे हो आप, है ना, तो आप अगर समझना पड़े ना तो ये ब्रैकेट के आगे डबल क्लिक करो, कहां तक इसकी बॉडी है वो अपने आप सिलेक्ट हो जाती है। एल्स के यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, एल्स की बॉडी पूरा यहाँ तक है। अब आपका है कि आपको इफ एल्स के अंदर लिखना है या उसके बाहर लिखना है, राइट? तो वो आप पे डिपेंड होगा, आपके सामने सिनेरियो होगा, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी, इन्होंने तो यहाँ पे खत्म कर दिया, स्विच स्टेटमेंट आ गया, बट अभी हम लोग यहाँ पे इसको कंप्लीट नहीं करने वाले, हम इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है? तो एक चीज हमें क्या समझ पड़ी, कर्ली ब्रेसेस है ना, और क्या है, ऑप्शनल है, बगैर कर्ली ब्रेसेस के भी हम लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है? टेक ओनली, लेकिन अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं है तो एक स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होगी, मतलब एक स्टेटमेंट है वो इफ के अंदर मानी जाएगी, एक ही स्टेटमेंट है वो एल्स के अंदर मानी जाएगी। एक से ज्यादा अगर स्टेटमेंट आप लिख रहे हो, इसमें कुछ इसको ऐसे बताता हूँ, अब मान के चलो अभी एल्स पार्ट को भूल जाओ, ठीक है? एल्स हम नहीं ले रहे हैं, ओनली इफ ले रहे हैं, ठीक है? तो इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट है ना ये ऑप्शनल है, चलिए हम भी हटा देते हैं, अगर ये ऑप्शनल है तो क्यों लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है? ऑप्शनल है। और इसके बाद मैंने एक और स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया, एक मिनट, हाँ अभी बताइए, अभी क्या होगा यहाँ पे, अभी ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो प्रिंट करेगा या नहीं करेगा? तो आपको कुछ ऐसे समझना चाहिए, बूलियन बी इज इक्वल टू फॉल्स, अभी बी की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, ठीक है? इधर क्या किया, बी के अंदर ट्रू कर दिया, तो इफ की वैल्यू हो गई ट्रू, ठीक है? रिजल्ट ट्रू आया तो ये क्या करेगा, इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी और हेलो को यहाँ प्रिंट कर देगा, ठीक है? इसी को ये बोल रहे हैं कि ब्रैकेट क्या है, ऑप्शनल है, लेकिन इसमें आप देखोगे तो यहाँ हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है? ये जो हेलो प्रिंट हो गया, लेकिन ये बोल रहे हैं इसमें कि कर्ली ब्रेसेस आर ऑप्शनल एंड विदाउट कर्ली ब्रेसेस वी कैन टेक ओनली वन स्टेटमेंट, ठीक है? क्या लेंगे हम लोग, ओनली वन स्टेटमेंट विच शुड नॉट बी डिक्लेरेटिव, और ये आपकी डिक्लेरेटिव नहीं होनी चाहिए। डिक्लेरेटिव मीन्स जैसे आपने लिखा है इसमें हेलो लिखा तो हेलो प्रिंट हो गया, अब मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ फिश आउट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हाय। अब मुझे बताइए ये जो दूसरा जो सेकंड लाइन लिखा है, लाइन नंबर 11, क्या ये इफ की बॉडी का पार्ट है? क्या ये इफ के अंदर है, ये इफ करेगा? ये लाइन है लेकिन इफ से बाहर हो गया है, ठीक है? इफ के अंदर मतलब इस कंडीशन के बेसिस पे ओनली ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है? अब ये लाइन एग्जीक्यूट करके जब वो बाहर आएगा तो उसको हाई भी मिल गया है, तो हाई वाली भी प्रिंट कर दी उसने, जो भी लाइन मिल जाएगी वो प्रिंट कर देगा, बट इफ के अंदर वो केवल बगैर ब्रैकेट के एक ही लाइन को कंसिडर करेगा, वो भी आपकी डिक्लेरेटिव नहीं होनी चाहिए। डिक्लेरेटिव से मतलब क्या है इनका, है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्लेरेटिव? मतलब जैसे इनिशियलाइजेशन आप कर रहे हो, int x इज इक्वल टू 10, तो ये आप डिक्लेयर कर रहे हो, आप जैसे ना x की वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हो 10, तो इस तरह का आप डिक्लेरेटिव नहीं लिख सकते इसमें। मतलब मैं ये हाई हेलो अगर समझ आ गया हो तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट, तो एस, हाँ हाँ सॉरी सर, सर जैसा आपने सिर्फ सिंगल इफ की वैल्यू को प्रिंट किया, ऐसे हम एल्स को भी प्रिंट कर सकते हैं, सिंगल एल्स को लेकर सर। हाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको मैंने ये लिखा और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या है यहाँ पे मैंने हाई लिख दिया, ठीक है? हाई लिख दिया, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, यहीं पे मैं क्या करता हूँ, एल्स एंड लेट मी पुट हियर and I am putting here something hello, okay? So हाँ लिख सकते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हाई प्रिंट होगा, फॉल्स हुई तो क्या होगा, हेलो प्रिंट होगा। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं, हाई प्रिंट हुआ क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है। लेकिन ये दोनों जो लाइन है ना, ये इफ के अंदर वाली लाइन है और ये एल्स के अंदर वाली लाइन है, ठीक है? अब चाहो इसमें कोई बीच में कोई लाइन आप डालना चाहो तो नहीं डाल सकते। आप जैसे कुछ यहाँ पे लाइन लिखने की कोशिश करोगे ना तो उसका जो लिंक है वो खत्म हो गया, सिंटेक्स एरर आ जाएगा, राइट? तो ऐसा नहीं कर सकते आप इसमें, अगर ऐसा कुछ करोगे आप यहाँ पे
तो ये क्या किया, एल्स ने एरर दे दिया है ना, क्योंकि इफ के साथ में ही एल्स यूज होता है, अकेले एल्स का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, अकेले एल्स का कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है गाइस, अकेले एल्स का कोई वैल्यू नहीं है, बट ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है, कि एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब अगर मैं इसके बाद अगर लिखता हूं मैं यहाँ पे, इफ आई एम गोइंग टू राइट एनीथिंग हियर, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका इफ एंड एल्स का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये बाहर है सब कुछ, ये कैलकुलेशन होने के बाद जो फाइनल बाहर आया होगा, तो यहाँ पे इसको ये लाइन मिल गया, इसने इसे भी एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, तो ये आपका चॉइस वाला मसला नहीं है, ये चॉइस के बाहर की चीजें होंगी, ठीक है। तो अब एक चीज क्या थी इसमें कि आप ये तो यूज कर लोगे, बट इसमें भी आप विदाउट कर्ली ब्रेसेस आप क्या करोगे, एक ही लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो लाइन भी आपकी डिक्लेरेटिव नहीं होनी चाहिए। डिक्लेरेटिव इंट एज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो 10, क्या कर रहे हो, है ना, इंट की वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हो 10 और 10 इनिशियलाइज कर रहे हो ए के अंदर, ये डिक्लेरेटिव टाइप की स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। स्टेटमेंट मतलब इंस्ट्रक्शन, जो लाइन आप लिख रहे हो, है ना, वो आपकी डिक्लेरेटिव नहीं होनी चाहिए। सिंपल सिस आउट एंड सम अदर आप लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, वैसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो विदाउट कर्ली ब्रेसेस आपको कई जगह ऐसे, आपको गूगल करोगे कुछ आप लिखोगे तो आगे भी आपको इस टाइप के प्रोग्राम्स मिलेंगे, ठीक है, जहां पे कोई ब्रैकेट नहीं लगा होगा, देन यू वुड सरप्राइज, अगर आपने नहीं पढ़ा है उसके बारे में, बोले यार हमने तो ब्रैकेट ही सीखा है, अरे तो कर्ली ब्रेसेस क्या है आपके यहाँ, ऑप्शनल है। विदाउट कर्ली ब्रेसेस आप एक ही लाइन एग्जीक्यूट करा सकते हो, और वो भी लाइन आपकी डिक्लेरेटिव नहीं होनी चाहिए। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, इफ ट्रू और हेलो प्रिंट हो गया, इफ ट्रू int x is equal to 10, तो यहाँ डिक्लेरेटिव जो स्टेटमेंट लिख रहे हो ना, इसकी वजह से क्या दे देगा, इट विल लेफ्ट राइट टूवर्ड्स विद द कंपाइल टाइम एरर, ओके। सो इफ ट्रू, और इसके अंदर जो बॉडी, अगर आपको डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट लिखना है तो इसकी क्या लगाओ, बॉडी लगाओ आप, ठीक है, बॉडी के अंदर आप आई मीन एनी वैलिड सिंटैक्स की कोई भी लाइन लिख सकते हो। सो एक चीज और है यहाँ पे कि इफ के ट्रू लिखने के बाद है ना, यहाँ सेमीकोलन भी लगा सकते हो, इट्स अ वैलिड, बट इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि आप, है ना, अगर आप, हाँ सर इफ हमेशा ट्रू ही होगा, फॉल्स ही नहीं हो सकता। इफ, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो। इफ की वैल्यू हमेशा हम क्या ट्रू ही मानेंगे कि इफ की वैल्यू हम फॉल्स भी मान सकते हैं, ऐसा दो ही चीजें मानेंगे हम लोग, अकेले ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि ट्रू मानेंगे, ट्रू भी हो सकती है या क्या हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, बट इफ की दो ही वैल्यू होंगी, या इधर दो में से कोई एक ही होगी, या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। तो ये मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे कि ट्रू ही होगा, बुलियन टाइप का होगा। आपने प्रिमिटिव पढ़ा है ना, प्रिमिटिव